In today's video, we will see the exercise 2.3 of polynomial. So the first question is, divide the polynomial px. First question is, divide polynomial px by gx. We have given two polynomials px and gx. Divide px by gx and find the quotient and remainder. And find quotient and remainder. So we have to divide px by gx. The first question is, px is given x cube. Px is x cube minus 3x square plus 5x minus 3. The value of polynomial px is x cube minus 3x square plus 5x minus 3x, and gx is x square minus 2. Gx is given x square minus 2. So we have to divide px by gx. Means gx is the divisor and px is the dividend. So we will write divisor at that place, x square minus 2, then dividend x cube minus 3x square plus 5x minus 3. Now we have to divide. So let us see. Firstly, we will see the first term of dividend. The first term of the dividend and the first term of the divisor. And we divide the first term of the dividend by the first term of divisor. Means x cube divided by x square. X cube divided by x square. We will divide x cube by x square. And we get x. It means this goes by plus x. So x square minus 2 is multiplied by x. So x into x square, x cube, written below the term containing x cube, minus plus minus, and 2 into x, 2x. So 2x would be written below the term containing x, minus plus minus, and 2 into x, 2x. Now we will have to change the sign. Means we will subtract. So for subtraction, change the sign. Here is plus, so it becomes minus, and minus becomes plus. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म देखिए, और सॉरी डिवाइजर डिविडेंड का फर्स्ट टर्म देखिए और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म देखना है. तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म x क्यूब में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म x स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए, x आ गया. अब x को यहाँ लिख दीजिए और x से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखना है. x क्यूब वाले टर्म के नीचे x क्यूब का टर्म आएगा, x वाले के नीचे x का टर्म आएगा, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर का टर्म लिखेंगे और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट का टर्म लिखेंगे. So plus minus gets cancelled. अब हमें लिखना है x स्क्वायर का टर्म. So minus 3x square as it is, plus 5x plus 2x. It becomes plus 7x. और जो टर्म बच गया उसे उतार लीजिए नीचे. So minus 3 कांस्टेंट है. अब हमारा डिविडेंड ये बन गया minus 3x square plus 7x minus 3. This is the dividend. अब आप यहाँ पे साइन देखिए, पहले हमने यहाँ साइन देखा था, यहाँ साइन
साइन पॉजिटिव था तो यहाँ भी पॉजिटिव आया था, फर्स्ट टर्म का साइन नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। और अब हमारा डिविडेंड ये टर्म है, ये एक्सप्रेशन डिविडेंड है। अब वापस से देखिए डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 3x² और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x²। तो 3x² में x² का डिवाइड कीजिए, 3x² डिवाइडेड बाय x², व्हाट कम्स, इट कम्स 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3। अब -3 से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है, so प्लस माइनस माइनस and 3 into x² 3x² and minus plus 2 into 3 6 को कांस्टेंट टर्म के नीचे, so plus 6, again change the sign, plus minus plus में कैंसिल। अब हमारे पास 7x बच गया, इसे एज लिखिए, -3 और -6 इट बिकम्स 9 -9। अब डिविडेंड 7x - 9 और डिवाइजर की प्लेस x² - 2, लेकिन यहाँ पे x की पावर इसके x की पावर से ज्यादा है तो अब ये डिवाइड नहीं होगा। सो द रिजल्ट कम्स, द क्वोशेंट इज x - 3, you will write in this way, the quotient is x - 3 and remainder is 7x - 9. So this is the answer. The quotient x - 3 and the remainder 7x - 9. The question number 2. In this px is given x4 minus 3x², px equals to x की पावर 4 minus 3x² and plus 4x plus 5 plus 4x plus 5 and gx is given, gx is equals to x² plus 1 minus x, x² plus 1 minus x। अब हमें जो पॉलिनोमियल के टर्म होने चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, पावर शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स जैसे यहाँ x की पावर 4 है, x² है, 4x है, 5 है, तो x की हाईएस्ट पावर 4, x की पावर 2, x की पावर 1, दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन यहाँ x की पावर 2 के बाद x का टर्म आना चाहिए था, यहाँ कांस्टेंट आ गया, तो हम इसे सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख देंगे। तो gpx में gx का डिवाइड करना है, gx को पहले लिखेंगे x² के बाद x का टर्म आना चाहिए और हमारे एक्सप्रेशन में ऑलरेडी x का टर्म अवेलेबल है, तो पहले x का टर्म लिखेंगे, then we will write the constant term। फिर px लिखिए x raised to the power 4 minus 3x² plus 4x and plus 5। Now we have to divide, वही कॉन्सेप्ट, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म देखिए x raised to the power 4 और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म देखिए x², तो x4 में x² का डिवाइड कर दीजिए, इट गिव्स x², यहाँ लिख दीजिए x²। और यहाँ का भी साइन देखिए, यहाँ साइन पॉजिटिव था तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। बाय द वे अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ भी माइनस साइन आता। अब x² से इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करना है और इसके नीचे लिखना है, तो x² into x², it gives x raised to the power 4 plus minus x² into x³ लेकिन हमारे एक्सप्रेशन में x³ का टर्म नहीं है, तो x³ का टर्म बाद में लिख देंगे 5 के बाद में, तो प्लस माइनस माइनस ऑफ x³।
अब साइन चेंज कीजिए, माइनस और ये प्लस, x4 से x4 कैंसिल हो गया। अब कौन सा टर्म पहले लिखा जाएगा? एक्स क्यूब का टर्म पहले आएगा। तो यहाँ क्या है? प्लस का एक्स क्यूब, तो यहाँ नीचे लिखिए पहले एक्स क्यूब, देन एक्स स्क्वायर का टर्म तो माइनस 3x स्क्वायर, देन x का टर्म प्लस 4x एंड देन द रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म प्लस 5। अब देखिए ये डिविडेंड की प्लेस पे आ गया और ये डिवाइजर की प्लेस पे है। तो पहला टर्म देखिए एक्स क्यूब और इसका पहला टर्म देखिए एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड कीजिए, सो इट कम्स एक्स, और यहाँ साइन पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, और x से इन तीनों टर्म में इंटू करके नीचे लिखना है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस एंड x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सो माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस 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 1 इंटू एक्स 1x, 1x मीन्स x, again change the sign, minus plus minus, x cube cancelled, minus 3x square plus x square, it gives minus 2x square, minus digit is greater so minus sign will come, and minus plus minus, so 3 minus 1 2, plus minus minus and plus digit is greater, plus sign comes, 4x minus x 3x एंड प्लस 5। अब डिविडेंड की प्लेस पे ये टर्म आया और इसका पहला टर्म यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, और 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का डिवाइड करने से 2 आता है तो यहाँ 2 लिख दिया। अब माइनस 2 से इन तीनों को इंटू कीजिए, तो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 into x 2x, plus minus minus 2 into 1 2, change the sign, 2x square gets cancelled, 3x minus 2x x, and 5 plus 2 7. So the result came, the quotient is x square plus x minus 2, and the remainder is x plus 7. Let us see next question. The value of px is x raised to the power 4 minus 5x plus 6. Px is x raised to the power 4 minus 5x plus 6, and qx is 2 minus x square, 2 minus x square. अब px में qx का डिवाइड करना है, लेकिन qx में पहले कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल टर्म बाद में है, तो हमें क्या करना होगा? वेरिएबल को पहले लिखना होगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 से डिवाइड करेंगे x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए इसका पहला टर्म देखिए प्लस x रेज टू द पावर 4, लेकिन यहाँ माइनस है, तो अब क्या होगा? माइनस है और हमें चाहिए क्या? प्लस। तो माइनस में किस चीज का इंटू करने से प्लस आता है? तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है, तो इस बार यहाँ माइनस साइन देना होगा, क्योंकि माइनस माइनस गिव्स प्लस। तो माइनस और x4 में x स्क्वायर का डिवाइड कीजिए, या ऐसे भी समझ सकते हैं एक डिविडेंड का पहला टर्म x4 और डिवाइजर का पहला टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस का एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर से इन दोनों में इंटू कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4,
then plus 2 into minus x square. So plus minus minus 2 into x square 2x square, लेकिन x स्क्वायर का टर्म नहीं है तो 2x स्क्वायर को 6 के बाद लिख देंगे. साइन चेंज माइनस प्लस कैंसिल्ड. अब x स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखेंगे तो 2x स्क्वायर देन माइनस 5x प्लस 6. अब 2x स्क्वायर में माइनस x स्क्वायर का डिवाइड कीजिए. 2x स्क्वायर में माइनस x स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा. माइनस का 2. अब माइनस 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है और नीचे लिखना है. तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4, तो माइनस 4. Again sign changed, so it gives minus 5x plus 6 plus 4 plus 10. अब यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पावर लेस हो गया तो डिवाइड नहीं होगा. The result came. The quotient is minus x square minus 2 and the remainder is minus 5x plus 10. अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल. चेक whether the first polynomial is a factor of second polynomial. हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है. बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल. सेकेंड पॉलिनोमियल में फर्स्ट पॉलिनोमियल का डिवाइड करके हमें चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल. तो दो पॉलिनोमियल गिवन है. फर्स्ट पॉलिनोमियल इज टी स्क्वायर माइनस 3. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. फर्स्ट पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल टी के टर्म में है तो लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 3 एंड द सेकेंड पॉलिनोमियल इज 2t रेज़ टू द पावर 4. अब सेकेंड पॉलिनोमियल को qt लिखते हैं तो 2t रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3t रेज़ टू द पावर 3. सेकेंड पॉलिनोमियल को qt and minus 2t square minus 2t square minus 9t and minus 12. ये हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है और हमें चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है. बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल. सेकंड पॉलिनोमियल में फर्स्ट पॉलिनोमियल का डिवाइड करके तो देखिए क्या करना होगा. हम pt से qt में डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम लिख देंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल. इफ आफ्टर डिवाइडिंग qt बाय pt the remainder comes to be 0, then we will write that the first polynomial is a factor of the second polynomial. So we will write t square minus 3 at the place of divisor and the place of dividend. We write 2t raised to the power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t and minus 12. अब इसे डिवाइड करना है. वही कॉन्सेप्ट डिविडेंड का
डिवाइड करने का, 2t की पावर 4 में t स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो 2t की पावर 4 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इट गिव्स 2t स्क्वायर। तो 2t स्क्वायर में इन दोनों का इंटू करके नीचे लिखना है 2t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर, 2t रेज टू द पावर 4 प्लस माइनस माइनस एंड 2t स्क्वायर इंटू 3 6t स्क्वायर। 6t स्क्वायर को t स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखा, साइन को चेंज कीजिए माइनस प्लस, ये कैंसिल हुआ। अब t क्यूब का टर्म लिखिए 3t क्यूब प्लस का 6t स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का 4t स्क्वायर, देन रेस्ट ऑफ द टर्म माइनस 90 एंड माइनस 12। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आया 3t क्यूब, 3t क्यूब में t स्क्वायर का डिवाइड कीजिए, क्या आएगा प्लस का 3t आएगा। अब प्लस 3t से इन दोनों में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है, तो प्लस 3t इंटू टी स्क्वायर प्लस का 3t क्यूब एंड प्लस माइनस माइनस 3t इंटू 3, दिस गिव्स 90। फिर साइन चेंज कीजिए तो 3t क्यूब कैंसिल, इट गिव्स 4t स्क्वायर प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल एंड माइनस 12। अब 4t स्क्वायर में t स्क्वायर का डिवाइड कीजिए, इट गिव्स 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए और 4 से इन दोनों में इंटू कीजिए, 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 3 12, साइन चेंज्ड एंड गेट्स कैंसिल, सो व्हाट रिमाइंडर कम्स टू बी 0, सो वी विल राइट सिंस remainder is 0, therefore remainder is 0, therefore first polynomial is a factor of second polynomial. Since remainder comes to be 0, therefore first polynomial is a factor of the second polynomial. सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ भी दो पॉलिनोमियल गिवन है, pt गिवन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, px is given, px is given x square plus 3x plus 1. The value of px is x square plus 3x plus 1 and the value of qx is 3x raised to the power 4, 3x raised to the power 4 plus 5x cube, 3x raised to the power 4 plus 5x cube minus 7x square and plus 2x plus 2. दो पॉलिनोमियल गिवन है px and qx. px is x square plus 3x plus 1 and qx is 3x raised to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2. Same question, divide the first polynomial by the second polynomial. तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिखे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइजर की प्लेस पे और सेकंड पॉलिनोमियल डिविडेंड की प्लेस पे, 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म देखिए 3x रेज टू द पावर 4 और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म देखिए x स्क्वायर, तो 3x की पावर 4 में x स्क्वायर का डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 3x स्क्वायर,
3x स्क्वायर से इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इट गिव्स 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस 3x प्लस 3 इंटू 3 9x स्क्वायर 9x क्यूब x स्क्वायर इंटू x क्यूब so plus 9x cube, then 3x square into 1 so plus 3x square. Now change the sign, 3x 4 cancelled, plus 5x cube minus 9x cube, plus minus minus digit is greater so minus 4x cube minus 7x square minus 3x square minus 10x square and the rest of the term plus 2x and plus 2. अब minus 4x क्यूब में x स्क्वायर का डिवाइड कीजिए तो इट गिव्स minus 4x minus 4x क्यूब में x स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4x। अब माइनस 4x से x स्क्वायर में इंटू कीजिए प्लस माइनस माइनस 4x into x square 4x cube, then plus minus minus 4x into 3x 12x square plus minus minus 4x into 1 4x. Change the sign, plus 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 4x cube cancelled minus 10 plus 2 plus 12 2x square plus 6x and plus 2. अब 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए तो इट गिव्स 2 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 2. चेंज द साइन, माइनस गेट्स कैंसिल्ड, रिमाइंडर कम्स टू बी 0. सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल. फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ second polynomial. Why? Because remainder comes to be 0 and when the remainder comes to be 0 it means the first polynomial is a factor of the second polynomial. Let us see question number 3rd. Px is given x cube minus 3x plus 1. Px is x cube minus 3x and plus 1. The value of px, x cube minus 3x plus 1 and qx is x raised to the power 5. X raised to the power 5 minus 4x cube. X की power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1. फिर हमें वही करना, डिवाइजर की प्लेस पे है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और डिविडेंड की प्लेस पे x रेज टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. तो फर्स्ट टर्म देखिए डिविडेंड का x की पावर 5 में x स्क्वायर का डिवाइड करेंगे इट कम्स x की पावर 3. x की पावर 3 से इन तीनों को इंटू करके लिखिए x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर 5 प्लस माइनस माइनस 3x इंटू 3x इंटू x की पावर 3 इट गिव्स 3x रेज टू द पावर 4. अब 3x रेज टू द पावर 4 का टर्म नहीं है तो क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस 3x रेज टू द पावर 4 को 1 के बाद लिख देंगे और x क्यूब को 1 से इंटू करने से क्या आएगा तो x क्यूब इंटू 1 प्लस का x क्यूब तो यहां लिख देंगे प्लस का x क्यूब. x की पावर 5 में हमने डिवाइड कर दिया x स्क्वायर का तो x की पावर 5 में x स्क्वायर का डिवाइड करने से x क्यूब आया
एक्स क्यूब से तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5, एक्स क्यूब इंटू -3x माइनस 3x4 एंड एक्स क्यूब इंटू 1 एक्स क्यूब। चेंज द साइन, कैंसिल्ड। अब x की पावर 4 का टर्म पहले लिखना होगा, तो प्लस 3x रेज टू द पावर 4 एंड माइनस 4x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 5x क्यूब, देन प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब 3x की पावर 4 में x स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 3x, तो माइनस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर। चेंज द साइन, माइनस प्लस माइनस कैंसिल्ड। 9x क्यूब माइनस 5x क्यूब, 9x क्यूब माइनस 5x क्यूब 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब 4x क्यूब में x स्क्वायर का डिवाइड कीजिए, ये आएगा प्लस का 4x, तो 4x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर 4x क्यूब, 4x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3x, तो माइनस 12x स्क्वायर, 4x इंटू 1 प्लस का 4x। साइन चेंज्ड, 4x क्यूब कैंसिल, 12x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस x प्लस 1। नाउ इट गोज बाय 10, 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, इट गोज बाय 10, so 10 into x square 10x square, 10 into 3x minus 30x and 10 into 1 plus 10. Change the sign, minus plus 30x minus x 29x and minus 10 plus 1 minus 9. So this gives plus 4x cube minus 2x square plus 3x plus 1. It goes by 4x, 4x cube minus 12x square, 4x plus 10x square minus x plus 1. So since remainder is not 0, since remainder is not 0, therefore first polynomial is not, first polynomial is not the factor of second polynomial. First polynomial is not a factor of the second polynomial because remainder doesn't comes to